और हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ रहे हैं। ऋषिकेश में एम्स के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रॉमा सर्जरी एंड क्रिटिकल केयर के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मधुर उनियाल, जो हमें सड़क दुर्घटनाओं में और उनमें घायल हुए लोगों के बारे में बारीकी से कुछ बातें समझाएंगे। मधुर जी नमस्ते, प्लीज स्वागत आप। थैंक यू, आइए आइए प्लीज। मैं माननीय इंदिर जी आपसे पूछना चाहूँगा कि you were actually responsible for this very important legal. How did you think about this? Why and do you see it being implemented as usefully as it used to? I say this because earlier on in my career, I did a film which was based on this issue. There, of course, there was no law at that time. So the film was actually based around the story that I saw somebody injured, I took them to the station, and the amount of problems that happened after that, I had to go through. That was the story of the film. I mean, the story was something else later on, what happened, but the entire story was based on this कि भैया अगर एक्सीडेंट हो तो उसको बचाना मत, वरना ये सब आपको झेलना पड़ेगा। पुलिस स्टेशन में लिखवा, बार बार जाना पड़ेगा आपको। अगर इसको हॉस्पिटल आप ले गए तो पूछेंगे कहाँ हुआ, तुमने क्यों उठाया। If you had kept not moved him, you could have saved him from losing his neck muscle or something like that. Many a times, the medical fraternity actually says that. Ki, be careful how you move somebody who is an accident victim, because you may actually, quite inadvertently, cause more damage to the person. How do we deal with all this? So it's like this, that in 2009, Mr. Piyush Tiwari had requested me to come on the board of Save Life. And in 2012, we decided to file this petition. It was a public interest petition. I'll tell you the reason behind it. The reason was that Piyush had lost his cousin in a road accident, and he died after some time because of lack of any care. He just bled to death and passed away. So he says, I think it's very necessary for us to move a petition in the court. So I drafted a public interest petition invoking the Supreme Court's powers under Article 141 of the Constitution, where we joined all the states, union territories as parties, because police and health, public health and hospitals are state subjects. So it was necessary to join all of them as parties, and we asked the Supreme Court to frame guidelines for protection of good Samaritans so that they are protected from civil and criminal liability. They are not summoned to police stations, and the hospitals also do not detain them unnecessarily, particularly where a death occurs, because they want them to be an eyewitness. So in 2016, we got these guidelines framed by which, firstly, no good Samaritan can be held liable for civil or criminal liability. Second is, they will not be detained in police stations. Third is, hospitals will not ask them to disclose personal information. But if a death occurs and they're an eyewitness, then a commission can be made so that they go and take their evidence on affidavit, and they go to them and they don't harass them with repetitive calls to the thana or to the hospitals. So this was actually what was framed by the Supreme Court 2016. Now the impact of this judgment, which you asked me, the second part of your question, it's like this, that once this judgment came into existence, then there were a lot of fatalities which were decreased. In fact, India had the reputation as per a WHO report, that India had the highest number of fatalities through road crashes. So it was really a serious issue which needed to be addressed. After that, Karnataka came out with a state legislation on Good Samaritans, but the other states have not yet followed. So the impact has been somewhat, but not entirely. No other state has really followed the suit. So now this third part is that the Motor Vehicles Act has been amended, which has provided statutory protection to a good Samaritan. So these are broadly the impact of the guidelines framed by the court. Some of the states need some more All samvedana states, in terms of except considering Karnataka. this. But Dr. Unyal, the part which you said कि कैसे
to help. You would like to ask him? I just want to just go back to Ji. to the explanation you gave. Unfortunately, I'm just trying to be devil's advocate. There is a human tendency that whenever a law is made, क्या करें जिसको इसको किस तरह से तोड़ा जाए. So if there is, yeah, you know, a lot of people, they actually get the law and find first how to misuse it. What and how does the court decide that somebody is misusing the law? I'll just give you a random, please don't take me for this thing. No, that's Suppose okay. somebody, you know, commits a crime himself, and in order to be safeguarded for that, picks up and says, iska accident hua, and that chap is unconscious, so he doesn't know. Something like this. How would you deal with something like that? I mean, just trying to give you a very random example. Well, this example is a true life example. It does certainly happen. And it's the police investigations then which, reveal it. Because there may be other passers-by, there may be CCTVs, Correct. there may be various other corroborative evidence. Then they pick up the person and say that, there is some evidence to indicate your culpability. और सर मैं इसको एक डॉक्टर की हैसियत से और बताना चाहूँगा कि इस यूज़ का मिसयूज़ भी हो रहा है इस लॉ का, तो फ़ायदा ही है. Yeah. अगर वो खुद एक्सीडेंट करके क्रैश करके उसको अस्पताल ले भी आता है तो एज अ डॉक्टर हमारे पास चांसेस होते हैं कि हम उसे बचा पाए. Yeah. तो अगर मिसयूज़ भी हो रहा है लॉ का तो वो भी फ़ायदा है. Yeah. और वैसे भी डॉक्टर उनियाल जो पहले कुछ वक्त होता है, पहले कुछ घंटे होते हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. यानी अगर वक्त पे किसी को लेके आया जाए ट्रॉमा सेंटर, गोल्डन आवर जिसे गोल्डन कहा आवर जाता है. जिसको. But is it true that about 50%, accidents actually turn out to be, more than just a life-saving thing? Sir, I mean, इसका- they expire. I mean, there are deaths that happen. आपके ऑब्जर्वेशन का इम्पैक्ट एक्चुअली इससे बहुत ज़्यादा है. आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है. मैक्सिमम डेथ्स जो है पहले घंटे में होती हैं जो बचाई जा सकती हैं. लेकिन अगर हम इसे इस तरीके से देखें कि वो कौन सी डेथ्स है जो हम बचा रहे हैं. आंकड़े बताते हैं कि रोड क्रैशेस में यंग पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज बीइंग लॉस्ट. बच्चे जो घर से पढ़ने निकल रहे हैं, द ब्रेड अर्नर्स ऑफ द फैमिली, और उनके सामने उनका पूरा जीवन पड़ा है. 20 साल के बच्चे का एक्सीडेंट होता है तो 50 साल उसकी लाइफ के भी बचे हैं. तो क्यूमुलेटिव लॉस ऑफ सोसाइटी बहुत ज़्यादा होता है. तो सिर्फ 50% ही नहीं बच रहे, जो देश का बहुत प्रोडक्टिव सेगमेंट, प्रोडक्टिव ईयर्स ऑफ पॉपुलेशन है वो भी बच रही है सर. Is there some way that if there is an accident that has happened, and what I was saying, इसको शरीर को छुओ मत, हो सकता है इसमें और खराबी ला सकते हैं. What if that person calls a hospital or a doctor and take instructions from the medical profession what to do? So if they can ask him, क्या भैया क्या है, क्या लग रहा है, कहाँ से खून बह रहा है, क्या टूटा हुआ लग रहा है, and then accordingly wait and not start treating that person until the formal or professional help arrives, like an ambulance arrives or a doctor arrives. Is that something that can be introduced, सर Because I'll tell you what, a lot of medicine and medical practice is now being done through communication. You have an issue here, and you're talking to somebody in Europe or in America. Telemedicine or telecare is Yes, what you're exactly. talking about. A lot of that is happening. So, Piyush During the and, time of Dr. COVID, Unyal, you this want was to weigh very, in on very Yes, that's right. together. Piyush and Dr. Unyal, Dr. Unyal, yeah. Sure, Yeah. I think so. एक तो है कि जो जान बचाने की जो प्रक्रिया है सर, वो जैसा मैंने सीखा है अपने इस पूरे 16 साल के जर्नी में, सेव लाइफ में, उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है. आपको कुछ ही चीज़ें करनी होती हैं जिससे कि आप किसी की जान प्रिजर्व कर सकते हैं जब तक वो अस्पताल ना पहुंच जाए. लेकिन सर का आइडिया बहुत अच्छा है. इसमें अब नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं. आप व्हाट्सएप को पिंग कर सकते हैं, वहाँ से एक चैनल से रिप्लाई आ जाएगा कि आप आप इस तरीके से कीजिए. वहाँ से वीडियो भी आ सकता है कि ये इसकी प्रक्रिया है या ये इसका फॉर्मेट है. तो एक तो वो है सर, विच यू आर सेइंग इज़ अ वेरी वैलिड पॉइंट एंड इट शुड बी डन. देयर शुड बी यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन इन दैट स्पेस. सेकेंड इज़ दैट दिस इज़ अ लाइफ स्किल. This should be taught across the country in schools, colleges, offices, because a large amount of trauma also happens indoors, and this skill can then help save people's lives even in those situations. So would you say that some kind of training or some kind of education should be given to the common man as well? मान लीजिए दुर्घटना हो,
तो क्या कर सकते हैं इमीडिएटली? बिल्कुल सर, मोस्ट सर्टनली हम जब लोगों को सिखाते हैं तो हम बोलते हैं इसमें 3 चीज़ें होती हैं: चेक, कॉल, केयर। चेक फॉर द सीन सेफ्टी, चेक फॉर द कंडीशन ऑफ द विक्टिम, मेक द कॉल फॉर हेल्प फर्स्ट, क्योंकि उनको समय लगेगा पहुंचने में वहाँ, एंड देन प्रोवाइड वट एवर केयर दैट यू कैन। आप प्रेशर लगा के ब्लीडिंग रोक सकते हैं, अगर आपको CPR आता है तो आप CPR दे सकते हैं, सही से व्यक्ति को उठा सकते हैं। सो इट्स अ सिंपल स्किल बट इट मस्ट बी टॉट to citizens so that they can step forward to save lives. Golden hour, they would say. जी। सर पहले इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, आपका सुझाव बहुत उचित है, टेलीमेडिसिन का यूज़ किया जाता है, लेकिन जैसे पीयूष ने कहा कि बहुत सिंपल स्किल्स है, टेलीमेडिसिन का यूज़ हमें करना चाहिए ट्रियाजिंग पे। ट्रियाजिंग इज टू सॉर्ट आउट एंड ट्रांसफ़र। एक सेंट्रलाइज फैसिलिटी जो ये बता दे कि आपके निकट सबसे अस्पताल ये है। अगर सिर्फ इतना ही पता चल जाए कि आपके निकट सबसे अस्पताल ये है, यहाँ पे ट्रॉमा की सुविधा उपलब्ध है, आप ले जाएं, तो मरीज की जान बचाने के लिए बहुत अच्छा सिद्ध होगा सर। This golden hour actually medically, I mean, how important is it? Sir, Or what are the facts about the golden hour? if you want to know the exact यानी facts, घंटे भर के अंदर आप संभाल सकते हैं जो भी मरीज है या जो भी देखिए सर, इसको इस तरीके से समझते हैं। ट्रॉमा में जब डेथ होती है, क्रैशेस में जो डेथ होती है, ट्राइमोडल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, 3 पीक्स आती हैं, और जो पहली 2 मेजर पीक्स हैं वो पहले 3 घंटे में आती हैं। 80% लोग पहले 3 घंटे सर्वाइव नहीं करते, 1.5 घंटे में 50% और बाकी 3 घंटे के अंदर 30% मोर। जी। अगर ये 3 घंटे में लोग नहीं बच पाते तो जाहिर है कि इंटरवेंशन 3 घंटे के अंदर ही होना है। गोल्डन आवर इज अ वेरी गुड नेम टू गैदर सपोर्ट फॉर दिस थिंग, बट इसका अर्थ है कि आप जल्दी से जल्दी पहुंचाएं। Yeah. नोबडी सेफ इन गोल्डन आवर। अगर एक्सीडेंट हुआ है, आप 1 घंटा वेट नहीं कर सकते। अगर आप उससे पहले पहुंचा सकते हो, उससे पहले पहुंचाएं, लेकिन हाँ 1 घंटा तो मिनिमम होना ही होना चाहिए। तो हम लोग आउटकम्स बहुत अच्छे कर सकते हैं शीघ्र अगर पेशेंट को। अमित जी, कई बार हमने ये भी देखा है कि जब इस तरह का कोई एक्सीडेंट होता है, इसमें डॉक्टर उनियाल भी शायद बता पाएंगे, तो लोग वहीं कोशिश करते हैं कि वहाँ उसको CPR दिया जाए या फिर कोई और प्रॉब्लम है तो वहीं सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्या ज़रूरी होता है कि पहले हॉस्पिटल उन्हें तुरंत पहुँचाया जाए, फ़ौरन पहुँचाया जाए, बनिस्बत कि वहीं पर कुछ उनको इलाज देने की कोशिश हो? देखिए, जैसे पीयूष ने बताया कि भाई स्किल्स बहुत सिंपल हैं, तो जो सॉल्व करने का इशू, जो डिसीजंस हम करना चाहते हैं ऑलरेडी हो चुके हैं, दुनिया उन्हें कर चुकी है। इम्प्लीमेंटेशन में कुछ सेकंड्स लगते हैं, इसीलिए वो चीज़ करके और उनका अस्पताल पहुंचाना, स्टे इन प्लेस से बेटर है स्कूप एंड रन इन अ सेफ मैनर। जी। पंकज जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? अमित जी। नहीं, मैं मुझे लग एक चीज़ कि ये लॉ क्या कहता है इसके बारे में एक बार अगर मैम या जो एक्सपर्ट है हिंदी में समझाएं, जो हमें आज देख रहे होंगे, क्योंकि आज भी बहुत सारे इंटीरियर में लोग इस कानून के बारे में नहीं जानते होंगे। तो हम बात पूरी कर लिए, पर ये कानून क्या एक आदमी को अधिकार देता है मैम, अगर ये थोड़े से संक्षिप्त में हिंदी में। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें अवेयरनेस बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कंट्री साइड वगैरह में लोगों को नहीं पता, इवन टाउन्स एंड सिटीज़ में नहीं पता है। मेन इशू ये है कि अगर कोई विक्टिम है रोड एक्सीडेंट का, तो उसको वॉलंटरली आप जाके हेल्प करें और साथ में ही पुलिस एंड एम्बुलेंस को फ़ोन करें। इनफैक्ट हम एक पिटीशन फाइल कर रहे हैं कि एक कॉमन एम्बुलेंस कोड होना चाहिए, जो फ़ोन करते ही ये सारी फैसिलिटीज़ कोऑर्डिनेटेड हो एंड दे बिकम अवेलेबल इमीडिएटली। इन सो फार एज गुड समैरिटन इज़ कंसर्न, जो भी आदमी वॉलंटियर करके किसी मरीज कोई रोड एक्सीडेंट विक्टिम है उसको बचाता है या उसको हेल्प देता है, तो उसको अननेसेसरीली थाने में पेशियाँ नहीं होनी चाहिए, ना हॉस्पिटल वाले उनको डिटेन करें या उनसे पैसे मांगे कि हम इस आदमी को तभी एडमिट करेंगे जब तक पैसे हमें ना दी जाएं। इंदु जी, चूंकि गोल्डन आवर की बात हो रही है, हाँ, तो एक और मेहमान को बुलाने का वक्त है। तो गोल्डन आवर इतना जरूरी क्यों होता है, ये हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो में साफ देखा जा सकता है। उस वीडियो में सभी दिलों को उस वीडियो ने छुआ है। ये वीडियो थी अभिनेता गुरमीत चौधरी की, जिन्हें मुंबई की सड़क पर एक आम आदमी को CPR देते हुए उसकी जान बचाते हुए देखा गया था। उनकी इन्हीं अच्छाइयों की वजह से वे लोगों के अब दिलों पर राज करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए हम आमंत्रित करेंगे गुरमीत चौधरी को। बहुत बहुत स्वागत आपका, प्लीज। थैंक यू। थैंक यू गुरमीत। मैम, ये गोल्डन आवर, अमित जी आप बात कर रहे थे?
अभी गोल्डन आवर की बात हो रही थी कि क्या सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए, कितनी जल्दी शरीर जो है वो उसको अगर सुविधाजनक कोई उसका इलाज हो सके उस घंटे भर के अंदर तो जान बच सकती है। आपका क्या ख्याल है इस इश्यू के बारे में कि ये सही है या इसका इम्पैक्ट मैं भी जानना चाहूँगा मैम, एज फार एज द लॉ इज़ कंसर्न, इसका इम्पैक्ट अच्छा हुआ है, कैसा हुआ है? Impact has been